So let's start. We were dealing with the essential features or what you can call it as the characteristics of the company. जिसमें point number 1 हमने discuss किया था. Company have separate legal entity, which is a separate from the member, independent of the member. Company is a different altogether from its subscribers. Okay, company have its own distinct and separate personality. Then every member of the company have independent identity and company have independent identity. Member can make a contract with the company. Okay, at a time one person can be a shareholder of the company, member of the company, even he can be a employee of the company, director of the company, क्योंकि company की independent entity और एक human being independent entity है. आपको कल ली वर्सेस ली का केस भी मैंने बता दिया था वो वहाँ पे. Then next one, another point हमने डिस्कस किया कि कंपनी के मेंबर्स का इवन कंपनी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है. इसके लिए लीडिंग केस हमने डिस्कस किया मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. Then next one point we are going to in fact we have seen is a perpetual succession is the point we have seen. That is member may come and go but company का life continue रहता है, that is perpetual succession. Then next one, company have the limited liability. That means a company is of a limited company, the members liability will be limited to the amount of the shares only, in case of a company limited by shares, and members liability will be limited to the amount of the guarantee given in the memorandum in case the company is a guarantee company. Then we have discussed that company is a person, no doubt, but it is a legal person, it is an artificial person, so it did not have the features which a natural person have, like by birth features, hands, brains, etc. Brain. Then next one, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी का बैंक अकाउंट हो सकता है, लोन ले सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, कंपनी सूट फाइल कर सकती है, कंपनी पे सूट फाइल हो सकता है, बट ना कंपनी को जेल में नहीं भेजा जा सकता, कंपनी कैन मैरी, कंपनी कैन प्रैक्टिस द लर्नड प्रोफेशन. सो सम माइनर थिंग्स आर देयर व्हिच अ नेचुरल पर्सन कैन डू बट अ कंपनी कांट डू. देन कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो एक ह्यूमन बीइंग के थ्रू काम करती है और जनरली वो ह्यूमन बीइंग होता है डायरेक्टर. Then next one, company thus is considered as an artificial legal person है. Then we were on a point जब हमारा वो meeting end हुआ था, that is a common seal is the point. A company being an artificial is not bestowed with the module of a natural being, therefore it works through an agency of the human being. Common seal is the official signature of the company which is affixed by the officer and employees of the company. कंपनी को खुद का साइन नहीं है ना, हाथ नहीं है ना साइन करने के लिए, तो कंपनी का कॉमन सील जनरली कंपनी का क्या कंसीडर किया जाता है, बोलो ऑफिशियल सिग्नेचर कंसीडर किया जाता है. तो कॉमन सील एक तरह का सिंबल है, used by the corporation as a symbol of the incorporation. ये कंपनी रजिस्टर्ड इसका एक सिंबल मतलब उनका कॉमन सील है. 2015 तक कंपनी के हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में कंपल्सरी कॉमन सील अटैच करना पड़ता था, नीचे डालना पड़ता था, बट 2015 के बाद में उसको ऑप्शनल रखा है, अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं. The Companies Amendment Act 2015 has made the common seal optional by omitting the word and a common seal from section 9 as to provide an alternative mode of authorization for companies who opt not to have the common seal. Rationale for this amendment, rationale मतलब reason, is that common seal is seen as a relic of a medieval time. ये common seal अब पुरानी चीज हो गई ऐसा इनका बोलना है. Even in the UK, common seal has been made optional from 2006. UK में तो 2006 से common seal को optional कर दिया. हमने कब से किया बोलो 2015 से. This amendment provided the document which need to be authenticated by the common seal will require to be so done. Only the company ought to have common seal. In case company does not have the common seal, authorization shall be made. ये याद रखो. फिर अगर common seal नहीं है ना, तो फिर कंपनी की ऑथराइजेशन कैसे होगी बोलो, 2 डायरेक्टर सही करेंगे और एक कंपनी सेक्रेटरी के साइन, इन 3 लोगों की साइन होगी तो वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेटेड है. इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव द कॉमन सील, द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय द 2 डायरेक्टर of or by a director and a company secretary. My mistake, sorry. Either 2 director will give the authentication or at least 1 director and 1 company secretary. That is, that 2 people are required to give the authentication. Correction karo, this one is wrong. Okay, देखो, in case a company does not have the common seal, the authorization shall be made by the 2 director or by a director and company secretary wherever a company has appointed the company secretary. Authorization कौन देगा बोलो, या तो 2 डायरेक्टर देंगे
या फिर अगर कंपनी को कौन है वहां पे कंपनी सेक्रेटरी है तो ऑथराइजेशन कौन देगा, वन डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी विल गिव द ऑथराइजेशन इन दैट पर्टिकुलर केस। आया ध्यान में आपको। तो ये आपका एक पेपर क्वेश्चन भी हो सकता है कि कॉमन सील पहले क्या था, वो लोग कंपलसरी था, 2015 से कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया है। रीजन है कि अब ये पुरानी चीज है, हाँ मेडिवल टाइम्स की चीज है। यूके ने तो ऑलरेडी 2006 में ही कॉमन सील अबॉलिश कर दिया। तो क्वेश्चन है कि कॉमन सील नहीं तो फिर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को कौन ऑथराइज करेगा, आंसर है उसके कंपनी के डायरेक्टर्स को ऑथराइज करेंगे, उसके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को ऑथराइज करेंगे उसके डायरेक्टर्स, या फिर क्या हो जाएगा वहां पे उसको ऑथराइज कौन करेगा, एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी। योगिता, एक्चुअली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑथेंटिकेशन, इट्स नॉट अबाउट द कंसेंट। बेसिकली जब भी कंपनी का कोई डिसीजन होता है ना तो वो आगे जाके आपको जैसे जैसे कंपनी लॉ बहुत डीप कंसेप्ट है, हाँ, आपको बहुत ही मतलब ट्रेलर भी नहीं है आपको कंपनी लॉ की अभी के पढ़ाई के लिए। एक्चुअली कैसे होता है, दो टाइप के रेजोल्यूशंस होते हैं, एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन और एक होता है शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन। तो वो डिपेंड ऑन क्या डिसीजन लेना है उस पर डिपेंड होता है। तो अगर आप बात कर रहे हो कि ऐसे पॉइंट्स कंपनी लॉ के कि जो शेयर होल्डर के परमिशन से होंगे, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन तो लगती है, बट उसके बाद में इवन शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन भी पास होना जरूरी होता है एंड देन कंपनी वो डिसीजन लेती है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ना वो बात किसकी कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के नीचे साइन कौन करेगा। कंसेंट तो रिक्वायर्ड होगी वो अलग बात है, वो कंसेंट वंसेंट लेने के बाद ही कंपनी कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेगी ना, उठाया और कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसे नहीं होगा। पहले तो रेजोल्यूशन रखा जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट करना है क्या, वो रेजोल्यूशन मंजूर होने के बाद डिसीजन होगा कि कॉन्ट्रैक्ट करना है। बट कॉन्ट्रैक्ट पे जो सील होता है ना नीचे सिक्का साइन जो होता है, वो नीचे के साइन की बात मतलब ये पॉइंट है ऑथेंटिकेशन, ये डॉक्यूमेंट कंपनी ने साइन किया हुआ है, इसका जो एक ऑथेंटिकेशन होता है ना वो ऑथेंटिकेशन मतलब कॉमन सील है। कॉमन सील 2015 तक कंपलसरी था हर डॉक्यूमेंट पे, 2015 के बाद उसको ऑप्शनल किया है। फिर अब कॉमन सील नहीं है ना कंपनी का, तो कंपनी के कॉमन सील की जगह साइन कौन करेगा नीचे, तो कंपनी के दो डायरेक्टर साइन करेंगे, या फिर कंपनी में अगर सीएस है कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी वहां पे क्या करेगा, साइन करेगा वहां पे। हाँ, सो व्हाट द पॉइंट, दिस इज कॉमन सील। आया ध्यान में योगिता? हाँ मैम। So what the point what we have seen is that essential features or what we can call as the characteristics of the company हमने क्या किया यहाँ पर डिस्कस किए। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, मैंने आपको बताया था ये आपको ये जो पिक्चर दिखाया है ना मॉड्यूल में, हाँ ये पिक्चर ही आपको क्लियर करता है। क्या पिक्चर क्लियर करता है, देखो वहां पे कि कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी क्या है। हाँ, जैसे कि जब भी कोई एक्ट एक कंपनी करती है, जब भी कोई एक्ट एक कंपनी करती है, हाँ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी के शेयर्स, आगे सामने कौन आएगा, कंपनी। हाँ, कोई फ्रॉड हुआ, सत्यम का फ्रॉड, मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, कंपनी का फ्रॉड। हाँ, कोई अच्छा काम किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने ना अभी इस कोरोना पीरियड में बहुत ज्यादा डोनेशन वगैरह कंपनी के थ्रू दिया है, तो डोनेशन किसने दिया, कंपनी ने दिया, मतलब अच्छा करे कंपनी, बुरा करे कंपनी। तो जनरली कंपनी को इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है, राइट, प्रॉपर्टी कंपनी की, लायबिलिटी कंपनी की, गेटिंग द पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो एवरीथिंग जो सामने से आएगा वो किसका होगा, बोलो वहां पे कंपनी का। हाँ, क्योंकि हमने जो ऊपर डिस्कशन किया वो डिस्कशन यहाँ पे आता है, कंपनी हम इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी। हाँ, but see company has committed the fraud, okay, company has committed the illegal activity, but whether company have the brain to think, कंपनी को वो दिमाग है सोचने के लिए, नहीं है ना, फ्रॉड करने के लिए कंपनी को वो दिमाग है जो इलीगल चीजें करने के बारे में सोचे, नहीं है। कंपनी के पास दिमाग है कि वो किसी के साथ में कोई फंसाने के बारे में वहां पे सोचे, नहीं है। हाँ, क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है ना, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो नहीं वहां पे। हाँ, तो जब हम बोलते हैं कि कंपनी ने फ्रॉड किया, हाँ, या कंपनी ने टैक्स इवेजन किया, हाँ, या कंपनी ने शेयर वर्कर्स का बोनस जानबूझ के नहीं दिया, तो इसका मतलब इस कंपनी नाम के ये आया आपका वेल्थ।
हाँ, इस कंपनी नाम के पर्दे के पीछे कुछ दिमाग होंगे ना, गेटिंग द पॉइंट। इस कंपनी नाम के पर्दे के पीछे कुछ दिमाग होंगे, जो वो दिमाग है वो इस फ्रॉड के बारे में क्या कर रहे हैं, वहां पे सोच रहे हैं, और वो फ्रॉड को किसके नाम पे छुपाने की कोशिश करें, किस पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश करें, कंपनी नाम के पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश करें। तो समटाइम इट बिकम नेसेसरी टू लिव दिस वेल। दिख रहा है आपको, वो पर्दा बांधा हुआ दिख रहा है वहां पे, तो कभी कभी जरूरी पड़ता है कि इस पर्दे को हम लोग हटाएं, इस पर्दे को हम लोग लिफ्ट करें, पायरेट करें, हाँ, एंड देन सी दिस दिमाग्स, ये जो पर्दे के पीछे के दिमाग है ना, इसको फिर हम लोग चेकआउट करें कि ये फ्रॉड करने वाला जो दिमाग था, फ्रॉड करने वाला ये जो दिमाग था, ये किसका था, क्योंकि अल्टीमेटली किसी ना किसी पे लाइबिलिटी डालनी पड़ेगी, पनिशमेंट देनी पड़ेगी, हाँ, तो उसके लिए जो दिमाग है ना, ये ढूंढना जरूरी है, किसके पीछे का दिमाग किसका है। इसीलिए क्या करने की जरूरत है बोलो, पर्दा उठाने की जरूरत है, पर्दा सरकाने की जरूरत है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। इसे हम लोग कंसीडर करते हैं। अब 1 मिनट के लिए और एक चीज समझ के लो, फिर मॉड्यूल में जाते हैं हम लोग। हाँ, अब ना एक हमारा क्वेश्चन मार्क क्या है बोलो, लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल का मीनिंग तो ध्यान में आ गया आपको। हाँ, फिर अभी हमें मॉड्यूल में एक क्वेश्चन मार्क क्या देंगे, वो व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है कि जब कॉर्पोरेट वेल को क्या किया जा सकता है, लिफ्ट किया जा सकता है। तो देखो, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कराने के लिए ना उन्होंने जो सर्कमस्टेंसेस दिए, वो सर्कमस्टेंसेस दो टाइप में डिवाइड करके दिए। हाँ, एक्चुअल कंपनी एक्ट में। हाँ, एक है सर्कमस्टेंसेस व्हिच कम अंडर द कंपनीज एक्ट, हाँ, एंड अनदर सर्कमस्टेंसेस आर देयर व्हिच आर गिवन बाय द जुडिशरी। जुडिशरी मतलब जजेस ने दिए हुए। अब आपको इसके इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस मॉड्यूल में ये वाला पार्ट ही दिया है, तो जस्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कांसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल लिफ्टिंग, एंड देन वी हैव टू सपोज सर्कमस्टेंसेस व्हेन कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। हाँ, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करना मतलब क्या है, ये हमें अंडरस्टैंड करके लेना है, और साथ ही साथ क्या अंडरस्टैंड करके लेना है बोला हमें, सर्कमस्टेंसेस व्हेन कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। कॉर्पोरेट वेल कब कब लिफ्ट किया जाता है, इसके सर्कमस्टेंसेस हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि आपको ध्यान में आया क्या, दोनों का कॉन्ट्रास्ट ध्यान में आया। एक तरफ हम बात करें कि इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है, जो भी किया कंपनी ने किया, प्रॉपर्टी कंपनी की, लाइबिलिटी कंपनी की, हाँ, सब कुछ कंपनी का, और दूसरे साइड बराबर उसका अपोजिट प्रिंसिपल जो है, वो अपोजिट प्रिंसिपल कौन है बोलो, लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल उसके अपोजिट प्रिंसिपल है। तो क्यों अपोजिट प्रिंसिपल है, ये आपको ध्यान में आया क्या, देखो मुझे पहले ये बताओ कि आपको ये पॉइंट ध्यान में आ गया क्या, इसका मतलब ध्यान में आ गया क्या। Corporate well, huh? We'll start this point now. Corporate well refers to the legal concept. Corporate well क्या बोले, एक legal concept है, whereby the company is identified separately from the member of the company. ये वापस इस picture wise, हाँ, first step पे है, ये जो first line है ना, first line है वो first step पे ध्यान में। Corporate well मतलब क्या बोलो, ये कंपनी, हाँ, whereby जिसके पीछे कंपनी के मेंबर क्या करते हैं बोले, इस वेल के पीछे कंपनी के मेंबर क्या करते हैं, छुपते हैं। हाँ, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो कॉर्पोरेट वेल रेफर टू द लीगल कंसेप्ट वेयर द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली, कंपनी की ओन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है फ्रॉम द मेंबर। हाँ, द टर्म कॉर्पोरेट वेल रेफर टू द कंसेप्ट दैट द मेंबर ऑफ द कंपनी आर शील्डेड। मेरा ये जो मेंबर है ना कंपनी के, ये पर्दे के पीछे छुपे रहेंगे, they are shielded, they are protected behind the well of the company, of the from the liability connected to the company's actions. If the company incur any debt or contravene any law, the corporate well concept implies that members should not be liable for the error. In other words, they enjoy the corporate insulation. मतलब इनको insulate किया गया, इनको protect किया गया। कोई भी कंपनी ने लॉ वायलेट किया तो लाइबिलिटी किसकी बोलो, कंपनी की। हम लोग अभी जनरल रूल पे, हाँ, कंपनी ने लाइबिलिटी कोई लॉ वायलेट किया, कंपनी ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया, तो लाइबिलिटी किसकी बोलो वहां पे, कंपनी की है। इसका मतलब कॉर्पोरेट वेल, यहाँ तक आधा मीनिंग। हाँ, अब उसके लिफ्टिंग पे जाना है हमें, हम लोग अभी बेसिक स्टेप इस पिक्चर नंबर 1 में ही हम लोग अभी तक। हाँ, thus the shareholder are protected from the act of company. कंपनी जो भी करेगी उसके लिए शेयर होल्डर लायबल नहीं है वहां पे, क्योंकि शेयर होल्डर इंडिपेंडेंट पर्सन है और कंपनी इंडिपेंडेंट पर्सन है। फिर हमें इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए केस लॉ कौन सा है बोलो,
Salman versus Salman and Company Limited. हाँ, the foundation of the concept of the corporate will or independent corporate personality. हाँ, in Salman versus Salman, the House of Lords laid down that the company is a person distinct and separate from the member. Company independent है, separate है member से. फिर केस के फैक्ट्स आ गए. देखो मैंने आपको फैक्ट्स कल समझाया था, बस हमने नंबर इंक्लूड नहीं किए थे उसमें से. असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने. अब आपको वो नंबर के सहित यहाँ पे डिटेल मटेरियल मिल जाएगा. हाँ, in this case when Salman incorporated a company named Salman and Company Limited with 7 subscribers. हाँ, now who were that 7 subscribers? He himself, number 1, his wife, number 2, his 4 sons, 6, हाँ, and his 1 daughter, 7. This company took over the personal business asset of the Salman for 38,782. And in turn, ध्यान में आ रहा है कितने रुपए का पर्सनल एसेट बिजनेस था उसका? 38,782. And in turn, Salman took 20,000 share of each one and debenture worth rupees 10,000 of the company with the charge on the company's asset and the balance in a cash. टोटल कितना असेट लेके आया ध्यान में? सालमन यहाँ पे 38,782 का असेट लेके आया. इसमें उसने कंपनी के कुछ शेयर्स कितने खरीदे? $20,000 के शेयर्स खरीदे ऑफ ईच वन. देन उसने कंपनी के सिक्योर्ड डिबेंचर लिए. हाँ, 10,000 आगे दिया. देखो सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब कंपनी के प्रॉपर्टी पे चार्ज होता है, आपको बताया था. विद द चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी एंड बैलेंस इन कैश. नाउ व्हाट हैपेंड? देखो आगे, his wife, daughter and the 4 sons took up $1 1 share each. उसके वो वाइफ बच्चे उन्होंने भी क्या किया वहां पे? each 1 शेयर वहां पे क्या किया? खरीदा. सब्सिक्वेंटली कंपनी गई लिक्विडेशन में. हाँ, अब जब कंपनी लिक्विडेशन में गई, देखो $38,782 का असेट लेके वो कंपनी शुरू किया था. बट ड्यू टू द ट्रेड डिप्रेशन, बहुत बड़ी मंदी आई, डिप्रेशन हुआ. हाँ, और इसकी वजह से क्या हो गया? कंपनी गई लिक्विडेशन में. प्रॉब्लम क्या हो गया? देखो, unsecured creditor to the tune of 7,000 contended that Salman could not be treated as a secured creditor of the company in respect of the debenture held by him, as he was the managing director of one-man company, which was not different from the Salman, and the clock of company was a mere sham, मतलब fraud. हाँ, जो unsecured creditor थे, हाँ, उनका कहना था कि सालमन को कुछ नहीं मिलना चाहिए, सालमन ने बस नाम के लिए कंपनी बनाई है, एक्चुअली ये पूरा फ्रॉड है और इसके लिए सालमन को कुछ ना दो और जो भी अमाउंट बची है वो अमाउंट किसको दे दो? वहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को अमाउंट क्या कर दो? वहाँ पे दे दो. ऐसा उसका वहाँ पे कहना है. हाँ, बट हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वहाँ पे क्या हेल्ड किया? देखो, द कंपनी इज एट अ लॉ, डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर to the memorandum, and though it may be that after incorporation the business is precisely same as it was before and the same person are manager. हमें कोई लेना देना नहीं है. कंपनी एक बार रजिस्टर हो गई तो वो डिफरेंट पर्सन है, फिर वही लोग मैनेजर है. हाँ, वही हैंड प्रॉफिट रिसीव करते हैं. डजंट मैटर, कंपनी उनकी एजेंट नहीं है. एक बार कंपनी रजिस्टर हो गई, लॉ के हिसाब से 7 मेंबर है उसके, enough है वो. The company is not in law the agent of the subscriber or the trustees for them, nor are the subscriber as a member liable to any shape or a form except to the extent and the manner provided in that. जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट उतनी उनकी लायबिलिटी, उससे ज्यादा शेयर होल्डर की लायबिलिटी वहां पे नहीं रहेगी. Thus, this case clearly established the company as own existence है कंपनी का. As a result, shareholder cannot be held liable for the act of the company, even though he holds virtually the entire share capital. भले वो entire share capital hold कर रहा है, तो भी shareholder company के liabilities के लिए liable वहाँ पे नहीं है. So entire companies act जो हमारा है, वो entire companies act, corporation, corporate word इस theory पे best है. हाँ, that is theory of the separate corporate entity. इसी वजह से देखो, आपने सुना होगा कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में फ्रॉड बहुत होते हैं. हाँ, कंपनी कल रजिस्टर्ड होती है, लोगों से पैसे कलेक्ट करती है और लोग भाग जाते हैं, क्योंकि बहुत आसान है, कंपनी के नाम पे ढकेल दो और उधर से निकल जा. और भले ही वो पर्दा उठाया और रियल पर्सन को ढूंढा, उनके पास कुछ नहीं होगा तो करोगे क्या आप उनको वहां पे? हाँ, so it's very easy actually in the company form of business to make a cheat with the people. And this is independent corporate legal entities, the basic theory
ऑफ द कॉर्पोरेशन वर्ल्ड। हाँ, बट अब हमें पर्दा उठाना है। हाँ, हम लोग अभी तक जो पॉइंट पे थे वो पॉइंट क्या था, देखो नंबर 1 जो पिक्चर था उस पे कि सब कुछ किसके पीछे प्रोटेक्टेड है, बोलो कंपनी नाम के वेल के पीछे सब कुछ क्या वहां पे प्रोटेक्टेड है। नाउ द क्वेश्चन में अराइज whether this well of a corporate personality can be lifted or pirated। हाँ, मैंने आपको बताया था पायरेटिंग या पायरेसिंग मतलब ही लिफ्टिंग, उसका ही वो अलग एक नाम वहां पे क्या किया है, दिया गया है वहां पे। हाँ, तो क्या है कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जा सकता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। हाँ, बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन वन शुड फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फ्रेज लिफ्टिंग द वेल। हाँ, वेल को लिफ्ट करने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या आता है, ये क्वेश्चन हमें क्या करना है यहाँ पे चेकआउट करना है। इट मीन्स लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज ए लीगल पर्सन। हाँ, वेल को लिफ्ट करना मतलब अभी यहाँ पे आगे देखो। हाँ, वापस पिक्चर पे जाते हैं हम लोग। उस वेल को लिफ्ट करना मतलब अब कंपनी को इग्नोर करना है हमें। हाँ, और इस पर्दे को क्या करना है वहां पे हटाना है। और आपको ये पीछे दिख रहा है खाली भाग, इस रियलिटी को चेक करना है कि ये जो दिमाग है ये दिमाग कौन है, जो इस कंपनी के पर्दे के पीछे छुपे हुए दिमाग है, इन दिमाग को क्या करना है वहां पे ढूंढना है, मतलब लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल है। हाँ, See, देखो क्या गया। Before going into this question, one should first try to understand the meaning of the phrase lifting the veil. It means looking behind the company as a legal person and disregarding the corporate entity and paying regard instead to the realities behind the legal facade. When the court ignore the company and concern themselves directly with the member or manager, the corporate veil is said to have been लिफ्टेड। ये वाली डेफिनेशन आप क्या करना है यहाँ पे याद रखना। हाँ, लिफ्टिंग कॉर्पोरेशन वेल के लिए यहाँ से। हाँ, वेयर द कोर्ट इग्नोर द कंपनी एंड कंसर्न themselves directly with the member or manager। जब कंपनी नाम के पर्दे को इग्नोर करके कोर्ट खुद को डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट करता है, who are the real manager or member who are responsible for this fraudulent, illegal, wrongful acts, then the corporate veil is said to be लिफ्टेड। वहां पे कॉर्पोरेट वेल क्या हो गया, वहां पे लिफ्ट हो गया। हाँ, देखो अब हमने जो डिस्कस किया वो क्या था, बोलो मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल। मतलब समझो गलती से आपको पेपर पे क्वेश्चन है लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल, तो आपका पॉइंट नंबर 1 क्या रहेगा, बोलो कॉर्पोरेट वेल मतलब क्या। पॉइंट नंबर 2 क्या रहेगा, लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल मतलब क्या, जो भी हमने यहाँ पे मार्क किया। देन पॉइंट नंबर 3 क्या रहेगा, सर्कमस्टेंसेस हाँ ऑफ लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। यहाँ पे ओनली लिफ्टिंग लिखा है ना, इसकी जगह आप क्या करो पहले सर्कमस्टेंसेस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल को कब कब लिफ्ट किया जा सकता है उसकी क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, सर्कमस्टेंसेस। हाँ, लेट्स हैव अ लुक। The following are the cases where company law disregard the principle of corporate personality or the principle that company is a legal entity, distinct from and separate from the shareholder. Let's have a look. Number 1, to determine the character of the company, to find out whether company is a enemy or a friend। हाँ, इसके लिए ना श्रुति छोड़ के बाकी सबको समझो अराउंड पता है वहां पे। हाँ, हमें थोड़ा सा कंपनीज एक्ट में जाना पड़ेगा। सॉरी माय मिस्टेक, इसके लिए हमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाना पड़ेगा। हाँ, श्रुति देयर इज अ वन पॉइंट इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट इज क्वालिफिकेशन फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा बेसिक यूनिट 1 से आपको पता है हाँ कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन कर सकते हैं। देखो, a major can make a contract, and then persons who are not disqualified by law can make a contract, and persons who are a sound mind can make a contract. Now persons who are disqualified from making contract, उसमें एक पर्सन याद है आपको जो डिस्क्वालिफाइड बाय मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, सबको याद है, एलियन एनिमी पर्सन याद है। persons disqualified by law from making a contract में one of the person is a alien enemy. Did you remember alien enemy point? किसको याद है और explain करो। टेस्ट है ना कल आपका, जिसके साथ इंडिया का वॉर चल रहा है। हाँ, जिस कंट्री के साथ इंडिया का वॉर चल रहा है उसका जो सिटीजन होगा ना, वो सिटीजन हमारे लिए क्या होगा, बोलो एलियन एनिमी होगा। हाँ, और हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, वी कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद द एलियन एनिमी। और इवन पुराना किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है एलियन एनिमी के साथ और उसके बाद में वॉर ब्रोक आउट हुआ है, हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट या तो कैंसिल हो जाता है या तो आगे के लिए सस्पेंड हो जाता है। तो एलियन एनिमी मतलब कौन है, जिसके साथ इंडिया का वॉर चल रहा है, ऐसे कंट्री का सिटीजन हमारे लिए क्या होगा, बोलो एलियन एनिमी। अब ना ये जो रूल इंडिया में है ना,
यही सेम रूल ना इंग्लैंड में भी है। इंग्लैंड में भी वही, वहां पे वही रूल है कि जिस कंट्री के साथ इंग्लैंड का वॉर चल रहा है ना, उस कंट्री के साथ इंग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वो क्या हो गया, एलियन एनिमी हो गया। तो अब ना सेम कोई कंपनी जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो कंपनी कहीं पे हमारी एनिमी तो नहीं है ना, ये चेकआउट करने के लिए कंपनी नाम का पर्दा उठाया जा सकता है और रियलिटी देखी जा सकती है कि कंपनी के अंदर के सारे मेंबर्स हमारे कंट्री के लिए एनिमी तो नहीं है ना, फ्रेंड है क्या, ये चेक करने के लिए पर्दा उठा के रियलिटी चेकआउट की जा सकती है। और इसका फेमस केस है जो आपको कंपल्सरी याद रखना है, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। अब तक 2 केस गए हमें आपके मॉड्यूल वाइज। एक था सालमन का केस, यू हैव टू रिमेंबर दैट केस, no option is there to that particular case, and then another case we have seen is a Macaura versus Northern Assurance Company Limited. That case also you have to remember, no alternative is there to that case. Now this one third case, which also you have to remember, इसको भी कोई option आपको नहीं है वहां पे। हाँ, क्या हुआ है देखो वहां पे, let's start with the point, to determine the character of the company, that is to find out whether the company is an enemy or a friend. हाँ, in the law relating to the trading with the enemy, where the test is of a control adopted. The leading case on the point is a Daimler Company Limited versus Continental Tire Rubber Company. If the public interest is not like to be in a jeopardy, मतलब danger, jeopardy मतलब in danger, the court may not be willing to crack the corporate shell, but it may rend the well of ascertaining whether a company is an enemy or not. Directly आप यहाँ पे mark करो, it may rend the well for rend नहीं चाहिए ना, तो आप डायरेक्टली लिफ्ट वर्ड यूज कर सकते हो। हाँ, इट मे लिफ्ट द वेल फॉर ascertaining whether company is a enemy company. हाँ, it's true that unlike a natural person, company does not have the mind or conscience, therefore it cannot be a friend or foe. It may however be characterized as a enemy company अगर कंपनी का रियल कंट्रोल जिनके हाथ में है वो एनिमी है, क्योंकि कंपनी को फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ना, तो कंपनी फ्रेंड या एनिमी कैसे हो सकती है। इसीलिए पर्दा उठा के पर्दे के पीछे के जो कंट्रोल करने वाले हैं वो एनिमी है या फ्रेंड है, ये हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, इफ इट्स अफेयर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द पीपल ऑफ द एनिमी कंट्री, हाँ, फॉर दिस पर्पस द कोर्ट में एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ पर्सन हु आर रियली एट द हेल्म, मतलब कंट्रोलर ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी। तो एग्जैक्टली जिनके हाथ में कंपनी के अफेयर्स का कंट्रोल है, हाँ, उनको चेकआउट करने के लिए पर्दा उठाया जा सकता है और रियल पर्सन इन द कंट्रोल ऑफ द हैंड ऑफ द इन हुज हैंड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज देयर, इसको चेकआउट किया जा सकता है। हाँ, अभी ना आपके मॉड्यूल में इसके फैक्ट्स दिए नहीं है डैमलर के केस के, बट जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताती हूँ। इस केस में क्या हुआ था, एक रजिस्टर्ड कंपनी थी, इंग्लिश कंपनी, मेरा रजिस्टर्ड कंपनी क्या थी, इंग्लिश कंपनी थी, और इसके साथ में इंग्लिश कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। हाँ, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड में हो रहा था। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये इसका पीरियड कौन था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हाँ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना आपको पता है जर्मनी इंग्लैंड के अगेंस्ट था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और इंग्लैंड अपोजिट साइड में थे। हाँ, तो क्या हो गया पता है, जब मतलब कहीं से ऐसे ध्यान में आया कि इस इंग्लिश कंपनी का जो पूरा कंट्रोल है ना वो जर्मन हैंड में, तो इसकी वजह से क्या किया, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इंग्लिश कंपनी का पर्दा उठाया जाए और रियल कंट्रोलर हैंड को चेकआउट किया जाए। तो ध्यान में आया कि इस कंपनी के मैक्सिमम डायरेक्टर जर्मन थे, मेंबर जर्मन थे, कंपनी में इवन ना वो टायर सेल किया जा रहा था जो जर्मनी में मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसका मतलब पूरा कंट्रोल, बिजनेस, सब कुछ क्या था बोलो, जर्मन था, लेकिन कंपनी रजिस्टर्ड इंग्लिश थी। तो जरूरी था ना, ध्यान में आ रहा है आपको, शायद आप ध्यान में आ गया होगा कि पर्दा उठाना मतलब क्या है। ये पर्दा उठाया इसी वजह से पता चला ना कि पीछे के हाथ कौन है, सारे जर्मन है। हाँ, नहीं तो हम लोग अगर कंपनी नाम का पर्दा पकड़ के चलते तो पर्दे पे तो नाम किसका लिखा है बोलो, इंग्लिश कंपनी का, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसका है, इंग्लिश कंपनी का, इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है, बट पर्दे के पीछे के सारे हाथ कौन है, जर्मन है वहां पे। तो समटाइम इट बिकम नेसेसरी टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर इट इज एनिमी कंपनी और नॉट, to lift the well of the company. Now number 2 point देखो,
टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्स। हाँ, ये पॉइंट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये बहुत चलता है कि टैक्स को अवॉइड करने के लिए लोग क्या करते पता है, अगर मेरा इनकम 10 लाख है, हाँ, तो अलग अलग 10 कंसर्न ब्रांच बनाऊं मैं, हाँ, और इनकम को 1-1 लाख रुपए में डिवाइड करूं, तो मुझे गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा वहां पे। हाँ, तो कभी कभी अगर कंपनी ऐसे पर्पज से बनी है कि गवर्नमेंट का टैक्स अवॉइड किया जाए वहां पे, तो पर्दा उठा के चेकआउट किया जा सकता है कि कहीं पे ये टैक्स अवॉइड करने के लिए बनाई गई फ्रॉडलेंट कंपनी तो नहीं है ना। हाँ, देखो, in certain matter concerning the law of taxes, duties and the stamps, particularly where the question of controlling interest is in a issue. इस केस के नाम को याद रखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो है ना बेरेंडन्स एंड लिमिटेड वगैरह भूल जाओ, doesn't matter। हाँ, where the company entity, हाँ, is used to evade or circumvent the tax, हाँ, the court can disregard the corporate entity। लेकिन जब कोर्ट को पता चला पर्दा उठाने के बाद, अरे नहीं, इस पर्दे का फायदा इन्होंने टैक्स को इवेड करने के लिए यूज किया है, तो हाँ, कॉर्पोरेट एंटिटी का पर्दा उठा के चेकआउट किया जा सकता है कि रियल रिस्पॉन्सिबल पर्सन वहां पे कौन है करके। हाँ, ये भी केस एवरेज याद रखो, बट एब्सोल्युटली भूल जाओ ऐसे नहीं बोलूंगी, जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। बट ये जो केस है ना, इसका नाम आपको मस्ट याद रखना है कंपल्सरी, दिनशॉ मनोज पेटिट का केस, उसका नाम आपको 100% दिमाग में रखना है। हाँ, ये तो भूल ही जाओ, इसको याद रख सकते हो तो रखो, लेकिन इसको रखना ही रखना है। दिनशॉ मनोज पेटिट का केस। हाँ, क्या हुआ था देखो।